Good morning students. Today we are going to study chapter number 15 Economic Development from your SS textbook. Last session में we have completed half chapter. Rest of chapter is going to complete in this session. In this session we are going to discuss about factors of production. Let's start. Factors of production. Production is done with the help of natural resources and labor. Different types of tools are used for production. These factors are divided into 4 parts. Number 1 land, number 2 capital, number 3 labor, number 4 entrepreneurship. Land. In normal sense, land is the uppermost layer of surface of the earth. But in terms of economics, land means different types of natural resources. Natural resources is so important part of the production because natural resources provide the raw material for any production, which includes forests, rivers, mountains, minerals present in the interior of the earth, metal, etc. present on the earth's surface. Thus, land is natural tool for production. Capital. Number 2, capital. Capital, man-made instrument helpful in production process such as instruments, tools, houses like building for any institution, any factory are included in capital, property, assets and investments, etc. Labor. Labor means mental or physical work done with the aim to obtain monetary gain. Labor is a living factor of production. Work of farm laborers, workers, teachers, doctors, artisans, etc. is called labor. Number 4 is entrepreneurship. In this, the person who efficiently combines the 3 factors of production, यानी ऊपर के जो 3 factors हैं land, capital and labor, इनको जो combine करता है और अपने efforts से these factors of production, land, capital and labor is called entrepreneur. The process of coordinating the 3 factors of production in profit making process is called entrepreneurship. So now students, we can understand the factors of production there are 4 main parts of this. Number 1 is land, number 2 is capital, number 3 is labor and number 4 is entrepreneurship. Land is a natural factor of production. Without it nothing is possible. Capital is man-made instrument essential for production like building, monetary power and other resources. And labor is living factor of production. It is physical or mental work that contributes to production. Physical means like that कि if कहीं पर सड़क बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए जो लेबर काम करते हैं इज फिजिकल लेबर. लेकिन जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनका जो दिमाग यूज होता है इट्स अ मेंटल लेबर. वर्क दैट कंट्रीब्यूट्स टू प्रोडक्शन. एंटरप्रेन्योरशिप इज कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंड, कैपिटल एंड लेबर एंड टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटी. यानी ऊपर के तीनों जो फैक्टर्स हैं उनको जो कोऑर्डिनेट करके आगे प्रोडक्शन का काम जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आता है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नाउ वी लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ऑल ऑफ यू नो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड while resources to fulfill them are limited. लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. दुनिया का कोई भी देश जो है उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है. देयर विल ऑलवेज बी scarcity यानी कमी of factors of production. As a result, every country faces problems related to allocation of resources. Allocation of resources कि किस रिसोर्स का यूज किधर करना है, कितना करना है और कब करना है. Many questions arise such as why, when and how much quantity of limited resources can be used. Unlimited wants. Human wants are uncountable and unlimited. Yes, this is correct. Human wants are unlimited, uncounted. One is fulfilled, we will think about another one.
So many wants originate from one want. Many requirements are to be fulfilled again and again, while many wants arise because of development of science and technology. Thus, because of many reasons, wants become unlimited. So, in order to fulfill the wants, one has no make selection among wants. यानी ह्यूमन वॉन्ट्स जो है अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, हर वांट तो पूरी भी नहीं करी जा सकती. तो इसमें क्या करना होगा? रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, तो अगर हमें अपने वांट्स को फुलफिल करना तो हमें एक ऑर्डर देना है कि कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट वांट है जो हमको बहुत जल्दी पूरी करनी है. इसलिए हमको एक सिलेक्शन चाहिए, एक लिस्टिंग चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या समझा? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्कैर्स. और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हैज टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. फैक्टर्स जो है ऑफ प्रोडक्शन हैव अल्टरनेटिव यूजेस भी होना चाहिए उसका. ऐसा नहीं कि एक फैक्टर का एक ही यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी सेकेंड पॉइंट, इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज. जैसे कि अभी मैंने तुमको पहले ही बताया कि अगर सभी नीड्स हम पूरी नहीं कर सकते तो उनको एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर में बताना चाहिए कि भाई पहले कौन सी नीड पूरी करनी है. As the resources to satisfy wants are limited, the individuals has to decide which wants is more important. यानी जो सबसे ज़्यादा important want है वो सबसे पहले पूरी करनी चाहिए. He has to satisfy his requirements in order of priority. Whichever requirement is more important, that has to be satisfied early and later on the others. फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है तो उसके पास जो बजट है तो वो बजट में अगर सबसे बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है? फूड, क्लोथिंग, हैबिटेट, मेडिकल हेल्थ, एजुकेशन. तो अगर हमारा बजट हमें अलाउ नहीं करता है कि हम कहीं पर रिक्रिएशन के लिए घूमने जाएं या मूवी देखने जाएं या बाहर डिनर करने जाएं, तो नो, हमें उन डिज़ायर्स को सप्रेस करके जो मेन डिज़ायर हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनको फुलफिल करना चाहिए. लिमिटेड रिसोर्सेज. Factors of production mainly include natural wealth and man-made wealth. Natural wealth, which is provided by nature, and man-made wealth, which is generated by man. जैसे कि forest है, rivers हैं, it's provided by nature. But money है या buildings हैं, it is generated by man-made wealth. All these tools are limited, so they have to utilize जुडिशियली. यानी हमें ध्यान से न्यायपूर्वक उसको यूज़ करना चाहिए, यानी कि उसको हम वेस्ट करें. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स हैज़ टू बी डन कीपिंग सेलेक्टेड वॉन्ट्स इन द सेंटर. अल्टरनेटिव यूज ऑफ resources to satisfy demands are limited. Not only this, they have alternative uses too. When any tool of production may be utilized in more than one way, it means that the tool has multiple uses. यानी एक tool के बहुत सारे uses भी होने चाहिए. So it may be said that this uses is alternative. For example, उदाहरण के लिए, if wheat is sown in a land, बाजरा कि एक जमीन पर बाजरे की जगह वीट बोया जाता है, मेज, ग्राउंडनट और एनी अदर, इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड. अगर गेहूं बो दिया है एक खेत में, अगर गेहूं हमने उगा लिया है तो उगे हुए गेहूं पे हम वहाँ पर बाजरा, मेज या ग्राउंडनट और अदर कुछ भी कोई अदर क्रॉप हम नहीं उगा सकते हैं. अदर यूजेस ऑफ द लैंड हैज टू बी स्टॉप्ड. Thus, in above mentioned condition, distribution of factors of production is done in such a way that they satisfy to maximum possible demands. मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है स्कूल का, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर स्कूल चल रहा है, तो वहाँ पर उसका कोई दूसरा यूजेस हम नहीं कर सकते हैं उस समय में. मेथड ऑफ अलॉटिंग ऑफ रिसोर्सेज. एवरी नेशन ट्राइज टू अटेन स्पीडी इकोनॉमिक development.
हर कंट्री बहुत जल्दी अपना विकास चाहती है। बाई मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे कर सकेंगे कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ कर सकें, अच्छे से जितना ऑप्टिमम यूज़ कर सकें, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मेनली डन बाई टू मैथड्स। कौन से टू मेथड से एलोकेट कर सकते हैं? मार्केट मैकेनिज्म एंड सोशल सिस्टम। बोथ द सिस्टम आर अपोजिट टू ईच अदर बाई mingling both system, mingling मतलब mixing both system, which both system, market mechanism and social system. Many other methods are developed. Every country accepts one or the other method as per their requirement. Following is the explanation of method of allotment of resources. There are two systems of allocation of resources. For example, market mechanism and second is socialist system. Both the system is opposite to each other. Now let's see what is market system. Nations like America, Japan, etc. have made their economic development through market mechanism. Market mechanism is also called capitalist system. Market mechanism को capitalist system भी कहा जाता है। In this method, इस method में the process of resources allocation is done on the basis of profit scope. यानी इसमें किसको ध्यान में रखा जाता है? profit scope को कि in this system, in production and its related activities, profit is at the center. People invest in those industries where they had more scope of profit. Market is completely free in this system. Government does not any specific economic policy or does not play any role in this system. Competition plays a vital role and very important role in market system. In the competitive market, the owner has to increase working capacity to the greatest extent in order to obtain maximum profit. Because of this method, many new researches are done and new methods of production are created. So production is the maximum. Because of this, fast economic development of the countries take place. Thus, production is the maximum. Because of this, fast economic development of the countries take places. Thus, competition controls the whole market like an invisible hand. As the state does not interfere, this system is also known as free economy. So now, market mechanism, free economy, and capitalist system, trios are one. Market system. So now, student, market system is also called capitalist system economy. It exists in the कौन सी country में है? It exists in the USA, Japan. Its main features are, what is the main features of? Now we studied its main features of market mechanism. Student, this is very important question, examination point of view. So please pay attention on this. Number one, ownership of रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज ईदर इंडिविजुअल और प्राइवेट, या तो इंडिविजुअल होता है या तो प्राइवेट होता है. नंबर सेकेंड, प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द मार्केट सिस्टम. मार्केट सिस्टम को किस में क्या ध्यान रखा जाता है? ओनली प्रॉफिट. प्रॉफिट किसका? प्रोड्यूसर का, जो किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है. कंज्यूमर गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस. इसमें क्या होता है कि जब लोग अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर एक गुड कॉम्पिटिशन होता है, लोग अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन देना चाहते हैं. तो इसमें कंज्यूमर क्या करते, कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदा है? कंज्यूमर गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस. उसके पास चॉइस होती है कि वो कौन से प्रोडक्ट को खरीदें. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट देयर इन दिस सिस्टम. इस सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किस पे बेस्ड होता है? प्रॉफिट पे, क्योंकि इसमें सेंटर में क्या है? प्रॉफिट ही सेंटर में है. Economic decisions are taken while keeping price mechanism is mind. जब प्राइस मैकेनिज्म को माइंड में रखा जाता है तो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं जो प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं.
बेनिफिट ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन मार्केट mechanism system. Number 2, resources of production are utilized to the greatest extent and efficiently. यानी सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है कि रिसोर्सेज का जो यूज़ है, यूटिलाइजेशन है प्रोडक्शन में, तो वो ग्रेट एक्सटेंट पर है, एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है, उसको वेस्ट नहीं किया जाता है। एबिडेंट प्रोडक्शन में भी डन, ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि सभी प्रोड्यूसर्स जो हैं अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं। New exploration keeps on taking place continuously in economy. As a result, economic development becomes faster. Quality of things improves because of competition. यानी कंपटीशन, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं अच्छी चीज़ बनाएंगे तभी तो उनकी चीज़ बिकेगी, तो दैट्स वाई उधर बहुत कंपटीशन रहता है, तो इससे जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, जिस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं, किसी भी सिस्टम के अगर बेनिफिट्स होते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, और इनके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी बेनिफिट्स, जबकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मार्केट सिस्टम इज़ नॉट परफेक्ट, पर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सिस्टम। देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इट, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं सिस्टम में, विच आर एज फॉलोज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, हमने देखा कि मार्केट मैकेनिज्म में या फ्री इकोनॉमी में मेन चीज सेंटर में क्या होती है, वो होता है प्रॉफिट। कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ मोर क्वांटिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस कमोडिटीज ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट इज नेग्लेक्टेड और रिड्यूस्ड। इसमें क्या होता है कि अगर लोग अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो लोग जो लग्जरियस कमोडिटीज़ होती हैं उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें होती हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं लोग, क्योंकि हमेशा लोग प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रूल ऑफ स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। इसमें क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट का तो कोई भी इंटरफेरेंस ही नहीं होता है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन या प्रॉफिट करने के चक्कर में बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज भी होने की संभावना रहती है। Due to lack of knowledge and ignorance about the market, consumers are exploited. Consumer are exploited means like वो किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, क्योंकि उनको मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस होती है। यहाँ पर सेंटर में कौन है, प्रोड्यूसर्स हैं जो सामान को बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, तो उसमें वो प्रॉफिट के बारे में ही सोच रहे हैं, तो इसलिए कंज्यूमर्स को हमेशा एक्सप्लॉइटेशन का डर रहता है इस सिस्टम में। Due to centralization of property and income, there is an increase of disparity of income. Disparity of income यानी उसमें एक तरीके की एक रास्ता नहीं रहती, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, इसलिए disparity of income होती है उसमें। There is a fear of monopoly, economic instability, exploitation of labor, etc. These are the main limitations of market mechanism system. Student, this is very important topic. So for your examination point of view, 3 marks question में इसको पूछा जा सकता है, so please pay attention. 3 marks 4 marks, this is very important chapter at the point of examination points of view. Please pay attention. Now second is socialist system. Socialist system में क्या है? Socialist system जो है, जैसे मार्केट सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो प्रोड्यूसर्स है, जो बनाने वाला है कोई भी सामान का, वो मेन उसमें होता है, वो अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करता है, पर इसमें कंज्यूमर सब कभी कभी एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, लेबर एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। सोशलिस्ट सिस्टम में क्या है कि सोशलिस्ट सिस्टम क्यों पैदा हुआ, जब एक सिस्टम फेल होता है उसके बाद कुछ सुधार करने के बाद लोग दूसरा सिस्टम को बनाते हैं। तो सोशलिस्ट सिस्टम इमर्ज ड्यू टू मैनी डिफेक्ट्स इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम, यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम में बहुत सारे डिफेक्ट्स होने की वजह से सोशलिस्ट सिस्टम इमर्ज हुआ। इट्स एग्जिस्ट इन कहाँ पर है, रसिया एंड चाइना एंड मेनी अदर कंट्रीज। इट्स मेन फीचर्स आर, क्या क्या इनके मेन फीचर्स हैं। Socialist system originated because of limitations and failures of market system. Countries like Russia and China have achieved fast economic progress by adopting this system. Socialist system is quite opposite to the market system. यहाँ पर सेंटर में कौन है, व्यापारी हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। यहाँ पर सेंटर में कौन है, कंज्यूमर है।
इन द सोशलिस्ट सिस्टम आर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट मशीनरी। वहाँ पर इकोनॉमिक मार्केट सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी वो नहीं रहता, हस्तक्षेप नहीं होता। वो कोई भी तरीके का वो सभी डिसीजन जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वही ले सकते हैं। पर इन सोशलिस्ट सिस्टम में ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मशीनरी। स्टेट owns all the resources of production. In this system, whole economy is managed by the state. All the decisions pertaining to production, investment, resources, distribution, production, distribution, etc. are taken after keeping the requirements of the society in mind. यानी जो भी कुछ डिसीजन लिए जाते हैं सोशलिस्ट सिस्टम में, वो किसको ध्यान में रख के लिए जाते हैं? सोसाइटी के वेलफेयर को देकर, सोसाइटी हमारे कंज्यूमर्स को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। In the socialist system, rather than profit, social welfare is at the center. किसको ध्यान में रखा जाता है? सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण, लोगों के कल्याण को। वहां पर किसको रखा जाता है? ओनली प्रॉफिट। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड दियर प्राइजेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट। यानी जो भी प्राइजेस डिसाइड होते हैं, कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। The responsibility to achieve the target of production decided by the state governed factories. Farming is also owned by the state. Labor are paid according to their ability and accordingly work is taken from them. Like that कि जमीन, इसकी जमीन, उसकी जमीन, ऐसा नहीं है, उसके खेत, इसके खेत, ऐसा नहीं। यहाँ पर सभी कुछ क्या होता है? गवर्नमेंट के अंडर होता है। और वो उनके फार्म में लेबर्स जो काम करते हैं, वो वहाँ पर सब कुछ खेती और सब कुछ करते हैं। इसके बदले में उनको अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली वर्क उनको जो पेड कर दिया जाता है। ये सिस्टम में फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, क्या क्या फीचर्स हैं इनके? नंबर वन, देयर आर सो मेनी फीचर्स। नंबर वन, जैसे स्टेट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज आर ओन बाय द स्टेट, यानी गवर्नमेंट के अंदर में रिसोर्स होते हैं सब। नंबर सेकेंड, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट। गवर्नमेंट या स्टेट जो होता है वो सभी डिसीजंस लेता है, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी है। रादर देन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें प्रॉफिट नहीं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? प्रॉफिट के बारे में सेंटर में रखा जाता है। सोशलिस्ट सिस्टम में क्या है? सोशल वेलफेयर, यानी लोगों के वेलफेयर, लोगों के कल्याण की बात सोची जाती है। कंज्यूमर्स इसमें फायदे में रहता है। लेबर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न टू वर्क। जो लेबर काम करते हैं उनके रिटर्न में उनको वेजेस यानी उनको सैलरी पे की जाती है। Benefits of social system. Benefits of socialist system. Number one, because of production according to the requirement of the society, unimportant and luxurious items are not produced. Basic needs की चीजें होती हैं. As the decisions related to the production are taken by the state, so wastage of resources is not there. Disparity of income and property is removed. Consumers are not